Good evening student. Yesterday we have studied about the crystal field theory and explanation of the crystal field theory. In that we have learned about the splitting of d orbitals according to the tetrahedral as well as octahedral complexes. Dear students, in that you have studied about the two groups T2G and EG group when the d orbitals split form two groups EG and two TG groups. In case of the octahedral complexes, T2G group has lower energy while EG group has higher energy. While in case of the tetrahedral complexes, EG group has lower energy and T2G group has higher energy. The difference between these groups' energy is called crystal field splitting energy. Yesterday I have explained how to write the configuration of d orbitals in terms of the T2G and EG for octahedral as well as tetrahedral complexes. But some students are feeling problem to write the configuration, so I am explaining once again. Suppose you want to write the D4 configuration when del octahedral greater than P. Dear student, as I have explained that in case of octahedral complexes, T2G group has lower energy, so first we have to write T2G, then we have to write EG. और आपको पता है कि T2G में 3 orbitals होते हैं. That's mean we can draw like this, 3 orbitals and then 2 orbitals. अगर यहाँ पे ग्रेटर देन P दिया गया है, इसका मीनिंग ये है कि पहले हमको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग्स इसी में करनी है. 1 2 3 4 5 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अगर आप दूसरी तरह से चाहें तो इस बॉक्स को ऊपर भी बना सकते हैं, ये आपके लिए और इजी होगा. अगर यहाँ पे ग्रेटर देन P नहीं दिया होता, लेस देन P दिया होता, तो 1 2 3 4 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते. अभी जिस तरह से इलेक्ट्रॉन फिलअप करे गए उससे आप देख रहे हैं कि T2G में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो वी हैव टू राइट T2G5, और EG में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया है और इस पे 0 आएगा. फिर यहाँ पे हमने 5 का लिख दिया, इसको हम 5 कर देते हैं, D5. सी हियर अगेन D6 del octahedral less than P. सो octahedral लेना है तो T2G पहले लिखना है और EG बाद में लिखना है, यानी T2G का बॉक्स बनाएंगे 3 and 2. यहाँ पे हमने लेस देन बताया है, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जब करेंगे 1 2 3 4 5, मीन्स ये है कि सारे ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाना चाहिए. अब टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं और हमको अभी एक और बनाना है, तो फिर से हम लोअर लेवल से स्टार्ट करेंगे 6. सो आप क्या देख रहे हैं, T2G ग्रुप में 4 इलेक्ट्रॉन, सो T2G4 EG2. वन मोर, इन केस ऑफ D5 del tetrahedral greater than P. Dear student, in case of tetrahedral we use only T2 and E, not G. लेकिन tetrahedral में E ग्रुप जो होगा उसकी एनर्जी कम होगी, वो पहले लिखा जाएगा, और T2 ग्रुप बाद में. That's mean 2 ऑर्बिटल्स नीचे बनाए जाएंगे और 3 ऑर्बिटल्स ऊपर बनाए जाएंगे. तो जब हम फिलिंग करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है और अब देखना है कि ये ग्रेटर देन दिया है, तो हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे 1 2 3 4. ग्रेटर देन के केस में हमें पहले लोअर लेवल को पूरी तरह से फिलअप करना पड़ेगा, फिर हम हायर लेवल पे जाएंगे. अब जब ये 4 इलेक्ट्रॉन इसमें पूरी तरह से फिलअप हो चुके हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा है, वो T2 ग्रुप में जाएगा. सो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होगा E4 T21. टेट्राहेड्रल को लिखने में हम G का यूज़ नहीं करते, ऑक्टाहेड्रल के लिखने में हम T2G और EG का यूज़ करते हैं.
I think you have understand about how to write the deconfiguration in terms of EG and T2G. Now I am moving towards the next and most important topic of this chapter, that is isomerism. So students, as you have studied in class 11 about the isomerism in organic chemistry, and in class 10th also you have studied about the little part of isomerism. In class 11 you have studied the vast part of isomerism on the basis of organic compound. Here a special type of isomerism which related to the coordination complexes. That means the definition is same, the compounds having same molecular formula but different structural or spatial arrangement are called isomerism. Isomerism, the phenomena of a compound having same molecular formula but different structural formula or different spatial arrangement is called isomerism. In organic chemistry we study about two types of isomerism. One is structural isomerism, and second one is stereoisomerism. Similarly, here also we will discuss about the structural and stereoisomerism, but the structural isomerism in coordination compound and stereoisomerism in coordination compound has very large difference in organic compounds. So what is the structural isomerism? Compounds which contain similar molecular formula but different structural formula are called structural isomerism. There are 5 types of structural isomerism. In organic chemistry there are 6 types or 7 types of isomerism, but these types with organic chemistry and coordination compounds will be different. यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो आइसोमेरिज्म है उसमें भी स्ट्रक्चरल होता है और इसमें भी स्ट्रक्चरल होता है, लेकिन उसमें इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. इनकी आइसोमेरिज्म मैच नहीं करती, नेम्स मैच नहीं करते, डिफिनेशंस हो सकती हैं लेकिन क्या कहते हैं उनके फार्मूले और कॉन्सेप्ट अलग हैं. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. नंबर 1, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. ऐसा कुछ आपने पहले नहीं सुना था, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. नंबर 2, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. नंबर 3, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. Number 4, linkage isomerism. Number 5, ligand isomerism. और अगर हम स्टीरियो की बात करें तो इसमें 2 टाइप्स की आइसोमेरिज्म हैं जिनके नेम बिल्कुल उसी तरह से मैच करते हैं जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में. ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी आपने स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ी थी. नंबर 1, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. एंड नंबर 2, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. So dear student, we will discuss one by one in detail of these type of isomerism. Okay students. So ionization isomerism में जैसा कि आपको पता है कि कॉम्प्लेक्सेस में एक पार्ट होता है जो कॉम्प्लेक्स होता है, दूसरा पार्ट होता है काउंटर आयन होता है जो बाहर की तरफ होता है.
जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में लिखते हैं या पहले लिखते हैं, उसे हम काउंटर आयन बोलते हैं। स्पेशली जिन कॉम्प्लेक्सेस में बाद में काउंटर आयन होता है यानी कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनमें इस तरह की आइसोमेरिज्म शो होती है। सपोज़ कीजिए हम कोई एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं, उसका फार्मूला है COCl2 NH3 होल 4 ब्रैकेट क्लोज SO4। आप देख रहे हैं अगर इसको हम स्प्लिट करें तो इसमें एक ये पूरा कॉम्प्लेक्स का आयन बनेगा और एक ये सल्फेट आयन बनेगा। अगर हम कुछ ऐसा इस स्ट्रक्चर में करें कि आपका जो सल्फेट आयन है वो ना बने और कोई दूसरा आयन फर्निश करे, यानी कि इस स्ट्रक्चर को किसी दूसरी तरह से लिखा जाए जिसमें कि अभी सल्फेट आयन बन रहा है और ये बन रहा है, तो और सल्फेट आयन ना बने तो कोई दूसरा आयन बनेगा, तो डेफिनेटली फिर कॉम्प्लेक्स भी बदल जाएगा। तो इस तरह की कंपाउंड जो दूसरा बनेगा वो दोनों आयोनाइजेशन आइसोमर्स बोलेंगे, और जो कंपाउंड जो फिनोमेना शो करेंगे वो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोली जाएगी। द कंपाउंड इन विच मॉलिक्यूलर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट फर्निशेस different ions are called ionization isomers, and the phenomena of compound is called ionization isomerism। तो अभी इसमें सल्फेट आयन फर्निश कर रहा हो। अब हम आपको दूसरा स्ट्रक्चर इसका बना के बताते हैं कि क्या बनेगा। अगर हम सल्फेट को अंदर ले जाते हैं तो COSO4 और एक Cl हम यहीं रखते हैं, NH3 होल 4 ब्रैकेट क्लोज Cl। So this will be another structure। अब इसमें क्या बनेगा, इसमें क्लोराइड आयन फर्निश बनेगा और इसमें सल्फेट आयन बनेगा। अगर हम दोनों कंपाउंड्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दोनों की केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। अगर इस सॉल्यूशन को हम बेरियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे तो क्लोराइड आयन होने की वजह से कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर इस सॉल्यूशन को बेरियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे तो बेरियम क्लोराइड और सल्फेट आयन मिलने से बेरियम सल्फेट बनेगा और वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। दिस कंपाउंड रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड फॉर्म वाइट प्रेसिपिटेट, while this compound react with barium chloride form colorless solution। So dear students, what is the ionization isomerism? You have understand about the ionization isomerism। One more example I am giving to you। COCl2 H2O whole 4 bracket close Br। You are seeing bromide ion will be furnished। Now you can easily write the structure because you have understand the concept। Br will come inside CO Br Cl H2O whole 4 bracket close Cl। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है कि जब हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे या नया कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, यहाँ पे देखिए 2 लीजेंड्स ये हैं और 4 लीजेंड्स ये हैं, टोटल 6 लीजेंड हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो जब हम सेकेंड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उस टाइम पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होना चाहिए। देखिए एक BR को हम लाए हैं अंदर, ऐसा नहीं है कि आप सारे BR अंदर ले आएँ या यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर डिस्टर्ब हो जाए। तो अब इसमें BR फर्निश होगा जो कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करने पे AgBr बनाएगा, वाइट हल्का येलो प्रेसिपिटेट होगा, जबकि ये AgCl बनाएगा जो कि वाइट प्रेसिपिटेट होगा। ओके स्टूडेंट्स, number 2 is the hydrate isomerism। It is very special type of isomerism which occur in the coordination complexes। In this type of complexes, when water, that's mean H2O aqua, will act as a ligand as well as the molecule। ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें वाटर लीजेंड की तरह एक्ट करता है और मालिक्यूल की तरह एक्ट करता है। जिसमें वाटर पाया जाएगा और लीजेंड की तरह हो या मालिक्यूल की तरह हो तो उस स्ट्रक्चर को हम हाइड्रेट आइसोमर्स बोलेंगे एंड फेनोमेना इज कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। जनरली अगर हम एग्जाम्पल लिखते हैं CrH2O whole 6 bracket close Cl3। You are seeing there are 6
water of crystallization, water as a legend here, aqua. Its name is hexaquachromium third chloride. There are 6 legend, that means the coordination number of this is 6. हमने आपको क्या बताया था, जब आप कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो हमको ये ध्यान रखना है कि जितना कोऑर्डिनेशन नंबर पहले था उतना ही रहना है। हम इसमें से एक वाटर को बाहर ले जाएंगे, एक Cl को अंदर लाएंगे। सो सेकेंड स्ट्रक्चर विल बी CrClH2O होल 5 Cl2.H2O। इसका नेम भी चेंज हो गया, इसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई। इसका नेम मैंने बताया हेक्साएक्वाक्रोमियम थर्ड क्लोराइड। नाउ व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पेंटाएक्वाक्लोरिडोक्रोमियम chloride monohydrate? These two are the hydrate isomers. One more example, one more structure we can draw. Cr, एक Cl को और अंदर लाते हैं, CrCl2H2O होल 4, यानी कि एक H2O को और बाहर ले जाते हैं, Cl.2H2O। अब ये नया बन गया, इसका फिर से कलर चेंज हो गया, इसका नेम चेंज हो गया और प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो गई। इसका नेम होगा टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडोक्रोमियम थर्ड क्लोराइड डाइहाइड्रेट। सो इसमें आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे वाटर एज अ लीजेंट है, यहाँ पे वाटर एज अ मालिक्यूल है, यहाँ पे वाटर एज अ मालिक्यूल एज वेल एज लीजेंट है। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को हम सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। Okay students, now moving towards the third type of structural isomerism, that is linkage isomerism. Number 3, linkage isomerism. So students, as you have listened the linkage means link towards the central metal atom. Some ligands which are monodentate behave like ambidentate. आपको मैंने पहले भी बताया ambidentate ligands के बारे में, जो एक तरह के स्पेशल मोनोडेंटेट लिजेंट होते हैं, लेकिन उसमें 2 या उससे ज़्यादा एटम होते हैं और 2 कोई एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। एक टाइम पे एक ही एटम करता है। उसका एग्जांपल्स मैंने बताए थे, Cn नेगेटिव एंड Nc नेगेटिव। मींस Cn Nc आर एम्बिडेंटेट लीजेंट। जब C डोनेट करेगा तो N नहीं डोनेट करेगा, जब N करेगा तो C नहीं करेगा। इसी तरह से बताया था NO2 नेगेटिव नाइट्रो एंड नाइट्राइटो ONO नेगेटिव। इसमें N डोनेट करेगा, इसमें O डोनेट करेगा। सो किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर इस तरह का कोई लिजेंट लगा हुआ है तो उसका दूसरा स्ट्रक्चर उसके एम्बिडेंटेट लिजेंट को लगा के बनेगा, और इस तरह की आइसोमेरिज्म को हम लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलेंगे। सपोज़ कीजिए हम Cu Cn NH3 होल थ्राइस पावर +1, इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं तो Cu Cn NH3 NH3 NH3। इसमें Cn जो है पावर +1 C से अटैच किया गया है, लिंकेज करा गया है। इसका नेम होगा ट्राईअमाइन साइनो कॉपर सेकेंड आयन। और अगर हम इसी का दूसरा स्ट्रक्चर बनाएं तो इस C से ना अटैच करके N से अटैच करेंगे और वो बनेगा Cu Nc NH3 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 पावर +1, और इसका नेम हो जाएगा ट्राईअमाइन आइसोसाइनो कॉपर सेकेंड आयन। तो हम Cn की जगह Nc कर देंगे, NO2 की जगह ONO कर देंगे
और भी जो एम्बिडेंटेट लीजेंट है SCN निगेटिव, तो उसका हम कर देंगे NCS निगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, सो राइट डाउन क्वेश्चन to here. What type of isomerism will be shown in this complex? Cr H2O whole 4 NH3 whole twice Cl3। इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म होगी एंड ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ that isomers. Okay students, so students, I think you have understand very well about the crystal field theory, valence bond theory. Now you are studying about the isomerism. This is a different type of isomerism. As you have studied in the organic chemistry, that was very difficult, but it is very easy here. So 3 types of isomerism of structural categories today I have taught to you, and the remaining part of this will come tomorrow. Till you have to wait. Good night.